Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया। Let's take a look at the headlines this evening first. Benchmark domestic indices continue their upward momentum. Sensex adds over 220 points. Nifty closes near 23,250 level. India to create its own foundational model of AI soon, says Union Minister Ashwini Vaishnav. And digital payments across India record a jump of over 11% year-on-year as on September to 2024. घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला आज भी जारी। सेंसेक्स 220 अंक से अधिक उछला। निफ्टी 23,250 के स्तर के नजदीक हुआ बंद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत जल्दी ही अपना एआई मॉडल बनाएगा और देश में सितंबर 2024 में डिजिटल भुगतान वार्षिक आधार पर 11% से अधिक बढ़ा। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। हालांकि कारोबार में उतार चढ़ाव भी काफी देखने को मिला, लेकिन अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 227 अंक यानी 0.3% की बढ़त लेकर 76,760 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 86 अंक यानी 0.37% बढ़कर 23,249 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला। बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के नजदीक बंद हुए। And now let's take a detailed look at the stocks in English. Benchmark domestic equity indices today continued their upward momentum for third straight session. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, gained 227 points or 0.3% to close at 76,760. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, added 86 points or 0.37% to settle at 23,249. The broader market indices at BSE ended nearly flat. In the Sensex index, 20 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Bharti Airtel rose over 2.7%, Power Grid advanced over 2.5%, and Bajaj Finance gained more than 1.8%. Meanwhile, in the top laggards, Tata Motors plummeted over 7.3%, ITC Hotels tanked almost 5%, and Bajaj Financial Services dropped over 2.1%. In the sectoral indices at the BSE, 15 out of 21 sectors ended in positive territory. Among top gainers, oil and gas gained almost 1.6%, energy added over 1.5%, and realty increased almost 1.5%. Conversely, in top laggards, consumer durables shed 1.9%, focused IT slipped over 1.1%, and information technology lost over 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,138 companies advanced and 1,812 declined, while 124 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 18 companies hit their 52-week high, while 64 hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 7 पैसे कमजोर हुआ, 86 रुपए 62 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 108.08 पर चल रहा था।
So I would like to bring in our expert here, Puneet. Just a very general question for first-time investors or people who are just beginning their investing journey. How should they treat day-to-day market fluctuations? Sometimes in the short term, we see markets are rising like anything, and sometimes we see they are falling like anything. Yeah. So is that a cause of concern? How should they be? So you're right, Niharika. I think markets, the investors particularly, the retail investors, need to distinguish between short-term movements of the stock market and the long-term trends in the markets. Usually, investors get swayed by what's happening in the market on day-to-day basis. And we feel that markets have gone up on a particular day, they feel elated, and they are kind of prone to put in more investments when the markets go up on a particular day. And on a given day when the markets fall, they feel scared or they have fear in the markets. But I think you're right. The investors should be looking at the long-term trends. That is where real wealth will be created. Ability of investors to discern short-term trends is very limited. We can't figure out what's going to happen tomorrow. You may ask me questions about it on these programs, but honestly, it's very difficult for us to predict what is going to happen tomorrow. But we have a fairly good idea of what can happen over the next 1 year or maybe 2 years. So in the markets, it is usually a better idea or better advice to follow long-term trends rather than short-term trends. And do you recommend an ideal time horizon for which you should be investing in stocks or equity, or that's up to you purely? See, typically I would say investors who are looking for steady, safe returns in the market should be looking at 3 years to 5 years or 10-year kind of horizon. And that is when all the fluctuations in the market, they kind of get played out and you don't get swayed by those sudden falls and other movements. But I think a 3-year or 5-year time frame is more advisable for long-term investors. पुरी जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहें तो बाजार में आज उतार चढ़ाव काफी देखने को मिला है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बाजार नीचे जाकर भी फिर से वापस लौटा और कुल मिलाकर तेजी के साथ बंद हुआ है बाजार। तो बाजार का कुल मिलाकर मूड क्या है, कैसा लग रहा है, और आज की कार्रवाई यानी पूरी गतिविधि पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? तो मनोज जी, देखिए, अगर हम खास तौर से हम बैठे हैं करीब इस महीने के अंत में जी, और इस पूरे महीने के शुरुआती दौर से ही बाजारों में कमजोरी देखी गई, स्टॉक मार्केट में गिरावट देख रहे थे हम। और अब जो बाजार जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, करीब 76,000 सेंसेक्स है जी, और करीब 23,200 के लेवल के आसपास निफ्टी लेवल काम कर रहा है। ये मार्केट्स के लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो लेवल्स हैं, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज यानी 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है मार्केट्स का, ये करीब वो लेवल्स हैं, उसके आसपास मार्केट को सपोर्ट मिलता है। हमने देखा था 2-3 दिन पहले ये लेवल टूट गया था और नीचे करीब 23,000 के नीचे निफ्टी चला गया था, वहां से रिबाउंड हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल्स हैं स्टॉक मार्केट के लिए। यहां पर नया निवेश आ रहा है, इन्वेस्टर्स जो जिन्होंने ऊपर बेचा है या जो नया निवेश करना चाहते हैं वो यहां पर निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज है। यदि इस लेवल से मार्केट वॉल्यूम्स के साथ टूटता है आने वाले सप्ताह में, तो मुझे लगता है कि और करेक्शन आ सकती है और बड़ी करेक्शन आ सकती है। और ये भी एक संभावना है कि यहां से मार्केट सपोर्ट लेकर के बजट के बाद, और ये देखिए, याद रखिए कि अगला जो सप्ताह है बहुत ही क्रूशियल सप्ताह है। सबसे बड़ी बात है बजट प्रेजेंटेशन है फर्स्ट को। उस दिन भी स्टॉक मार्केट की हालांकि छुट्टी होती है, आपको मालूम होगा, शनिवार को, लेकिन इस शनिवार को बजट की वजह से स्टॉक मार्केट विल बी ओपन और ट्रेडिंग होगी, रेगुलर ट्रेडिंग होगी स्टॉक मार्केट के अंदर। और उसके बाद अगले सप्ताह आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी है सामने हमारे, मार्केट भी एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे है। तो अगला सप्ताह ये तय करेगा कि क्या यहां से नया ट्रेंड बनेगा। यहाँ पर पुनीत जी, हम ये समझना चाहेंगे कि बाजार में जो अभी की स्थितियां हैं उसमें फेड रिजर्व के कह लें कि नतीजे आ गए। बाजार जिसकी प्रतीक्षा 29 तारीख की लंबे समय से कर रहा था, उसके परिणाम सामने आ गए। एफआईआईज़ का रुख फेड के इस कहले के फैसले के बाद क्या रहने का आसार है? देखिए, यूएस फेड ने कल ये बात कही कि वो अभी इंटरेस्ट रेट को फर्दर कट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको लगता है कि अब इन्फ्लेशन की जो फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, वो पूरी तरह से अभी जीती नहीं गई है, और ये खतरा बना हुआ है कि यहां से इन्फ्लेशन में थोड़ी तेजी आए। साथ में अगर आप देखें तो जो नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आई है डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के चलते इन्फ्लेशन आने का खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि वो टैरिफ की बात कर रहे हैं। अगर टैरिफ लगाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं, तो वहां पर महंगाई बढ़ेगी। साथ में जो दूसरी नीतियां हैं उन सबको लेकर
इमिग्रेशन को लेकर देखें तो एक और ट्रेड वॉर्स की एक आशंका बनी हुई है। इन सब के चलते इन्फ्लेशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ गई है। तो यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करा और उन्होंने ऐसा इंडिकेशन दिया है कि अभी वो सोचेंगे इस बारे में। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जल्दबाजी में कोई इंटरेस्ट रेट पे कदम उठाने वाले हैं। और जब भी इंटरेस्ट रेट अगर फर्म रहेंगे या स्ट्रांग रहेंगे अमेरिका में तो वहां पर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, यानी डॉलर की जो मजबूती है वो बढ़ती है। तो मुझे लगता है जो एफआईआईज का रुख है वो कोई बहुत जल्दी बदलने वाला नहीं है। देखिए डॉलर से उनको बहुत फर्क पड़ता है, डॉलर इंडेक्स से। जब भी डॉलर इंडेक्स में हम तेजी देखते हैं, हम देखते हैं कि एफआईआईज इमर्जिंग मार्केट में बेचती हैं और अमेरिका में यानी डॉलर एसेट्स को खरीदती हैं वो। तो अगर डॉलर में मजबूती बनी रहती है तो मुझे लगता है कि एफआईआईज की सेलिंग बनी रहेगी या वो कम से कम बाइंग तो नहीं करेंगे इमर्जिंग मार्केट्स में। मुझे भी लगता है कि एफआईआईज का प्रेशर जो ट्रेंड रहा है सेलिंग का वो बना रहेगा। आपने अभी निहारिका ने जो सवाल आपका पूछा था उसमें आपने 2-3 सूत्र दिए थे कि निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए। हमारे निवेशक आमतौर पर हमारे श्रोता हैं, छोटे श्रोता हैं, उनके नजरिए से जो एक साल भर का 2 साल का हम समय लेकर चले तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? साथ ही अगले 1-2 साल का समय देखकर कौन से सेक्टर आपको लग रहा है जहां निवेश सुरक्षित रहेगा और बाजार के उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव जहां कहीं जाए, टैरिफ वार जहां कहीं आए, उन्हें अपेक्षाकृत अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सके, ऐसा क्या लग रहा है? मनोज जी एक अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स को, तेजी में बहुत भावना होती है कि हम तेजी से पैसा कमाएं, इन्वेस्ट करें, या मंदियों में डरते हैं और बाजार से हम निवेश करना या डिसिप्लिन जो है वो तोड़ देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो छोटे निवेशक हैं वो अपना डिसिप्लिन बनाए रखें। देखिए ज्यादा भावुक होकर के बहुत बड़ा पैसा लगाना बाजार में इस वक्त पर्टिकुलरली वो बहुत होशियारी का काम नहीं होगा। यहां पर संभल के रहना चाहिए, लेकिन बाजार में लगातार कुछ थोड़ा जो डिसिप्लिन, जैसे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कह सकते हैं, वो आप रख सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक खास बात अभी अच्छी है कि काफी इनफैक्ट हमने पूरी मार्केट को स्टडी किया, जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं, देखिए इंडेक्स से हम इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कितनी बड़ी करेक्शन बाजार में आई है। करीब करीब 40% शेयर्स इस वक्त बाजार में ऐसे हैं जो अपने 50% से ज्यादा करेक्ट हो गए। तो आपको जो शेयर्स में हमें था कि ओवर वैल्यूएशंस हैं, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं बाजारों में, वो काफी हद तक घटी हैं। वहां पर अब रीजनेबल वैल्यूएशन पे काफी अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं। तो अच्छी कंपनियों में डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं, बैंकिंग क्षेत्र की कंपनीज हैं, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस वहां पर रीजनेबल आ गई हैं। इवन मेटल्स में बहुत अच्छा वैल्यूएशन आ गई है। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर निवेशक पैसा लगाना शुरू करें। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि एकदम बहुत बड़ा पैसा ना लगाएं, बहुत जल्दी पैसा कमाने की भावना ना रखें। हाँ, धीरे धीरे पैसा लगाएं, आराम से लगाएं। जो भी प्रॉफिट आएंगे वो आएंगे जरूर, पर उसमें 2-3 वर्ष का उसमें समय रखें। Slow and steady wins the race, you know what they say, right? Yeah. So since we're on the subject of sectors, now there's a very attractive sector that catches my attention, and I would like to know what are the returns usually like in the e-commerce sector. So if you're investing in e-commerce companies, versus also now we see, a spike in companies that offer beauty products or makeup or, for example, grooming, and majority of them are placed on online portals or e-commerce companies. So from an investor's perspective, how does investing in these kind of companies or sectors look like? What are the returns usually like? So Niharika, interesting question. So what happened was that last 2-3 years, a lot of new technology companies, they came into the market. We had traditional sectors making steel, cement, tires, construction, land, this etc. All those companies. So investors knew how to value these companies, and so we had kind of familiarity with the valuation of these companies. And suddenly, in last 3-4 years, we had these new technology companies coming to the market, which were either selling insurance policies online or beauty products online, e-commerce companies, delivery companies, a lot of these, and they were very fancied by investors. And when these companies came to the market, the IPOs came, we saw there was a surge in the valuations. The prices really went high, and investors kind of chased these valuations. So my take is that these are good companies. They're going to stay in the business. Many of them will
flourish, prosper, but we need to be mindful about what is the valuation of these companies. There's no need to chase them. In fact, very recently, one of the very fancied food delivery companies, the price when it was listed, the price went up a lot, and now recently it went below the IPO price. So investors who came in later would have lost money. So my take would be the new technology companies are something to look for. We really need want to look at them, invest in them, but we should be mindful about valuations. We should not chase them at higher and higher levels in the hope that we'll make quick gains. Again, like we said earlier, invest at the right price, wait for some time, and I think then the fruits will be there. And I think also refrain from emotional investing. Often we see that emotions I can't say enough about this, because a lot of people have this emotional reaction to the markets, whereas Correct. money making is supposed to be a rational kind of a play. But Right. I think mostly people just react psychologically or emotionally to this business. यानी दिमाग का इस्तेमाल आवश्यक है, दिल को थोड़ा पीछे छोड़ दे जहां धन कमाने की लालसा आपके मन में है. आइए आगे बढ़े. Well, let's take a look at the next story now. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has said that India will create its own foundational model of AI in the coming months. Briefing media in New Delhi today, Mr. Vaishnav said that India's foundational model will be able to compete with the world's best model. He said, a framework has been created calling for proposals to develop India's very own AI model. The minister also announced that an AI safety institution will be established. He highlighted the progress of the India AI mission, which has already far surpassed its initial graphics processing unit or GPU targets. Mr. Vaishnav said, a common compute facility with 18,693 GPUs will be launched and will be available for startups, researchers, and developers in the coming days. He said, India now has 15,000 high-end GPUs available. On a query on privacy concerns around DeepSeek, Mr. Vaishnav informed that it will be hosted on Indian servers soon. So again, I have a question here related to public-private partnership. Now, that is in the works as regards India's AI mission is concerned. And how do you see stocks in the tech sector reacting to this? And also, the concerns around privacy, especially with DeepSeek coming in and data being transferred to Chinese servers. So what's your take on that? So Niharika, I think these are very early days for us to really understand how AI is going to work for companies, for consumers, for nations. It's a very complex technology in a sense, but there are 2-3 key building blocks to AI. One, of course, is the memory or the data centers which have to be created where the data will be hosted. The other is technology where we are training the computers, the large language models, the LLMs, where a lot of training will happen and software will happen. And here I would like to underline the fact that what you feed into the training, how we train the computers is very important. Most of the AI models which are being developed are either being developed on information which is being fed by American researchers or by Chinese researchers. It is the story as they are telling, teaching to their computers. Right. Yeah. We need to tell our own story to the computers. It's very important because what you feed into the computers is how is it's going to process. So I think the idea that India needs to have its own AI model, it can be done only in partnership with private companies, of course. It's a huge investment required in these kind of projects. So I think we are working on it. Of course, it's a very difficult race because America has the muscle power in terms of money, it has the brain power, it has all the people, technology. China, of course, is also ahead in the race. Many other nations are not even in the race. I mean, they're not even aspiring to be there. Mm-hmm. Fortunately for us, we're at least trying to be in the race. So let's see how it works out. पुनीत जी, यहाँ पर 2-3 कह लें कि बुनियादी सवाल AI से ही जुड़े हुए, यानी एक तकनीकी शब्दावली चल रही है LLM और उस पर बड़ा भारी निवेश की आवश्यकता पड़ती है. ये क्या है और AI दुनिया को बदल डालेगा, ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी अभी भी बस AI का यानी हल्ला ही सुन रहा है, समझ नहीं पा रहा है. तो उससे क्या क्या परिवर्तन आपको लग रहे हैं और क्या सब बदलाव संभावित हैं इसके उपयोग से? और हाँ, इसके साथ ही जुड़ा हुआ ये कि चीन का जो AI मॉडल आया और बाजार में आते ही उसने छलांग लगाई, उसे आकाश पर पहुंचा माना जा रहा है. कुल मिलाकर खेल क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा AI कोई नई चीज नहीं है. जब पहला कैलकुलेटर आया तो वो भी AI था. AI क्या है? AI एक चीज है, इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है कि जो हम
इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम जो चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसको हम प्रोसेस करते हैं अपने दिमाग में। हमारे दिमाग में भी जीपीयूज लगे हुए हैं, प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और उसका आउटपुट, उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो एआई तो पहला कैलकुलेटर बना तभी से शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ है कि जो कंप्यूटर्स की 2-3 खास बातें हैं, एक मेमोरी है, एक प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, और एक उसका सॉफ्टवेयर है जो उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। ये 3 किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के, किसी भी डिजिटल सिस्टम के 3 हिस्से हैं। हुआ यह है कि जो तीनों हिस्सों की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ गई है। तो मेमोरी में, यानी हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जहां पर पूरी दुनिया का जितना ज्ञान है, जितना किताबी ज्ञान है, वो सारा फीड किया जा सकता है। तो पहले ये पॉसिबल नहीं था, अब ये पॉसिबल एक तरह से हो रहा है कि और कंप्यूटर्स की जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, हम उसको रैम में एक तरह से गिनते हैं। तो हम कहते हैं हमारा फोन में 16 MB रैम है या 20 MB रैम है। तो आप सोचिए कि वो एक ऐसा कंप्यूटर हो जो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठे एक्सेस कर सके। हमारा दिमाग जो है वो इंफॉर्मेशन को सिलेक्टिवली एक्सेस कर पाता है। तो जो एआई है, जो सो कॉल्ड न्यू मॉडल्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको इकट्ठे ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एक नया मुकाम मैं कहूंगा कि कंप्यूटिंग पावर में है। और इससे कैपेसिटी जो है वो सोचने समझने की कंप्यूटर्स की बहुत कई गुना वो बढ़ गई। तो अब ये चीजें हर जगह अप्लाई होंगी। जैसे मान लीजिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात हम करते हैं, या मेडिसिन की बात करते हैं, या रिसर्च की बात करते हैं, तो इकट्ठे आप समझिए कि 1000 किताबों कोई पढ़ करके उसको इकट्ठे ही याद रखे और उस पर वो प्रोसेस कर सके, तो वो एआई हो गया। वो ह्यूमंस करते थे, मशीन्स करेंगी। तो ये जरूर एक गेम चेंजर है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा, ये अर्ली डेज है, अभी ये काफी डेवलप होनी है टेक्नोलॉजी। अभी ऐसा लगता है कि अमेरिकी कंपनीज इसमें रेस में आगे हैं, क्योंकि पैसे की ताकत भी है, कैपेसिटी भी है, लेकिन अभी काफी आगे टेक्नोलॉजी डेवलप होना है ये, और उसका असर भी हमारे जो लाइफ पर होगा वो सामने आएगा, लेकिन उसमें भी कुछ समय है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डिजिटल भुगतान के मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश में सितंबर 2024 में वार्षिक आधार पर डिजिटल भुगतान दहाई अंकों में पहुंचती हुई 11% से ऊपर हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान इंडेक्स RDBI DPI सितंबर 2024 में 465.3 पर पहुंच गया, जबकि मार्च 2024 में यह आंकड़ा 445.5 दर्ज हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के DPI इंडेक्स में यह वृद्धि देश में इस दौरान बुनियादी भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे में विकास और भुगतान प्रदर्शन के आधार पर दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने वित्तीय इन्फ्लुएंसर यानी फिन इन्फ्लुएंसर पर अपनी शैक्षिक सामग्रियों में शेयर बाजार के लाइव या ताजा आंकड़ों को सम्मिलित करने पर पाबंदी लगा दी है। सेबी की ओर से कल जारी एक परिपत्र में यह जानकारी देते हुए कहा गया कि शिक्षा प्रदाताओं द्वारा शिक्षा सामग्री के रूप में वास्तविक समय में छद्म रूप से सलाह देने पर रोक लगाने के इरादे से यह फैसला किया गया है, ताकि उन्हें शेयरों के 3 महीने पुराने मूल्यों को केवल संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करने की उन्हें अनुमति अब दी गई है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि गैर निबंधित व्यक्तियों को निवेश सलाह देने, शेयरों के पूर्व प्रदर्शन का दावा करने या इसका भावी मूल्य अप्रत्यक्ष रूप से बताने संबंधी सलाह दिए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि निबंधित बाजार प्रतिष्ठानों को भी इस तरह के वित्तीय इन्फ्लुएंसर के साथ किसी तरह की सेवा लेने पर प्रतिबंध रहेगा। परिपत्र में कहा गया है कि ये नियम इसलिए बनाए गए हैं कि वास्तविक शिक्षा अप्रभावित रहे और भ्रामक सलाह से निवेशकों को बचाया जा सके। सेबी की इस यानी ये जो कह लें कि सर्कुलर जारी हुआ, इस पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। क्या हो रहा था और किससे बचाने के लिए यानी ये कह लें कि फैसला करना पड़ा है इसे? मनोज जी, देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर काफी अनरजिस्टर्ड और अनक्वालिफाइड मैं कहूंगा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स यूट्यूब के चैनल्स पर या पॉडकास्ट के जरिए वो इन्फ्लुएंस करते थे ऐसे इन्वेस्टर्स को जिनको अभी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, और उनसे उनको एडवाइस देना, उनको गलत भ्रमाना और ये क्लेम्स करना कि हमने बहुत पैसे बनाए और लालच एक तरह से जगाना, वो सब चल रहा था, जिसका बहुत बुरा असर सिक्योरिटीज मार्केट पे पड़ रहा था, इन्वेस्टमेंट पे पड़ रहा था। आप जानते हैं सभी को बहुत लॉसेज हुए हैं इस चक्कर में। तो सेबी ने एक अच्छा कदम उठाया है और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी कदम था इनके ऊपर लगाम लगाने का। यहाँ एक पूरक प्रश्न और बनता है ये कि मान लें कि कोई व्यक्ति सलाह दे रहा है तो उसके लिए इसमें है कि रजिस्टर्ड जो नहीं है, तो ये रजिस्ट्रेशन क्या है, वित्तीय सलाह देने के लिए क्या व्यवस्था है? तो सेबी क्योंकि आप क्वालिफाइड अगर हैं और आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, आप तो उसके लिए एक एग्जाम पास करना होता है। एक सेबी का एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक कोर्स है,
आपको वो कोर्स करना होता है, उसमें NISM एक इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सेबी का एक पेपर होता है, वो आप पास करें तो आपको फिर एक सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफाइड है कि आप की काबिलियत है कि आप किसी को एडवाइस दे सके, क्योंकि उसके रिस्क और उसके रिटर्न्स का आपको पूरा अंदाजा है। श्रोताओं, ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह आपके लिए है। आपके माध्यम यानी आपको विभिन्न माध्यमों से बहुत सारी सूचनाएं निवेश के संबंध में मिलती हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कानून में निवेश संबंधी सलाह भी देने की अनुमति भारतीय जो विनियामक है शेयर बाजार का, उसकी परीक्षा है। जिस तरह एक डॉक्टर परीक्षा पास करके उनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती है, वैसे ही इन वित्तीय निवेशकों के पास भी वो सर्टिफिकेट ना है तो उनको आप नीम हकीमी ही माने वित्तीय बाजार का और उनसे सतर्क रहें। Just a very brief point over here. So when you're watching any kind of content on social media, especially educational in terms of finance, the ability of discernment becomes very important. So are there any telltale signs of misleading information, or let's say a finfluencer who's not, who's not capable of being in the place they are, yet they show themselves as such? So Niharika, anybody who claims that he can ensure that you make a profit in the market, I think is lying, because there's nobody who can ensure that you make profits. You can only guide how to make investments and what to expect, but nobody can say that I can give you assured returns of 20%, 25%, 30%. Anybody who makes that claim, I don't think is fit to be an advisor. I think the word assured is one to watch out for. Whenever you see that word, it's time to run away. And with that, we have some important piece of information for you. So the budget session of Parliament is beginning from tomorrow. On the eve of the session today, News Services Division of Akashvani will bring a special discussion, Sansad ke Samaksh Mudde and Issues Before Parliament. The program Sansad ke Samaksh Mudde in Hindi can be heard on 100.1 megahertz Akashvani Gold and additional frequencies from 9:30 p.m. today. Issues Before Parliament, the program in English, can be heard at the same time on 102.6 megahertz Akashvani Rainbow and additional frequencies. And this program will also be available on our YouTube channel News on AIR Official. एक आवश्यक सूचना और है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करेंगी। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज बजट में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से संबंधित अपेक्षाओं पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। ये चर्चा आप सुर्खियों में कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:10 पर 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर सुन सकते हैं। और आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार। जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज 0.25% लाभ में रहा। चांद नववर्ष के उपलक्ष्य में सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और चीन में सार्वजनिक अवकाश के कारण बाजार आज बंद रहे हैं। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो प्रमुख बाजारों में लिवाली का सिलसिला दिख रहा था। समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.3% ऊपर चल रहे थे। फ्रांस के CAC 40 में 0.5% से अधिक की बढ़त दिख रही थी। And with that, let's also take a look at the US markets. US stocks ended lower yesterday after the Federal Reserve signaled a pause in policy easing. The tech-heavy Nasdaq Composite slipped over 0.5%. S&P 500 fell over 0.4% and the Dow Jones Industrial Average lost 0.31%. Meanwhile, the US Federal Reserve announced its first policy decision for 2025 after a 2-day Federal Open Market Committee meeting and voted unanimously to hold the benchmark interest rates unchanged at 4.25 to 4.50%, broadly in line with expectations. US Fed Chair Jerome Powell said in a post-policy press conference that the central bank does not need to be in a hurry to adjust their policy stance and monetary policy is well positioned for the challenges at hand. आइए चलें अब कमोडिटी मार्केट। पहले तेल की खबर, उसके बाद सर्राफा बाजार पर नजर डालेंगे। As for oil prices, they fell today as the Energy Information Administration data showed that US crude stockpiles rose for the week ending January 24, and focus remained on tariffs threatened by US President Donald Trump on Mexico and Canada, the two largest suppliers of crude to the United States. Brent crude was trading at 0.08% down at $76.52 per barrel, and WTI crude was also declined to trade at around $72.45 per barrel when reports last
last came in. सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना भारत में थोड़ा सा बढ़कर 81,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी घटकर 93,060 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। Thank you so much. It was a pleasure having you today. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices continue their upward momentum. Sensex adds over 220 points. Nifty closes near 23,250 level. India to create its own foundational model of AI soon, says Union Minister Ashwini Vaishnav. And digital payments across India record jump of over 11% year on year as on September 2024. And with that, it's a wrap on this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.